بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ شمعون نے کہا، پھر جاؤ اپنے باپ کے پاس اور کہو، اے باپ تیرے بیٹے نے چوری کی۔ پس بموجب کہنے شمعون کے 9 بھائی کنعان میں گئے، جہاں شمعون اور بنیامین رہے، اور یعقوب بیٹوں کے لیے اندیشہ کر رہے تھے، اور راہ میں لوگ بٹھا رکھے تھے کہ بیٹوں کی خبر لامیں۔ بس حضرت کو لوگوں نے آ کے خبر دی کہ صاحبزادے سب مصر سے تشریف لائے، مگر 9 صاحبزادے ہیں، شتر و بازاران کے ساتھ کچھ نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سن کر بہت اندیشہ ناک ہوئے اور رونے لگے۔ بس بیٹوں نے آ کے ساری حقیقت اپنی جو حال واقعہ ہوا تھا، مصر میں بنیامین کو قید رکھنا اور اسحاق کا چوری ہونا اور یوسف علیہ السلام سے لڑائی کرنا اور ضیافت کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کی یہ سب بیان کیا اور بولے، اے باپ ہمارے ساتھ کے قافلے والوں سے پوچھئے اور وہاں کی بستی والوں سے، ہم سچ کہتے ہیں، اس میں ذرا فرق نہیں، ہم بے گناہ ہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اور پوچھ لیجئے باپ ان بستی والوں سے جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں، ہم بے شک سچ کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، جو تم کہتے ہو تمہارے جی نے ایک بات بنا لی ہے، اب مجھ کو سوائے صبر کے کچھ بھی نہیں آتا۔ اور بولے، کوئی نہیں بنائی ہے تمہارے جی نے یہ بات، اب صبر ہی بن آوے شاید لے آوے اللہ میرے پاس، ان سب کو وہی ہے خبردار حکمتوں والا۔ غرض حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹوں سے یہ باتیں دروغ آمیز سنی، تب کچھ معلوم کیا کہ یوسف علیہ السلام مصر میں ہیں، تب ان سے منہ پھیرا اور کہا جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور منہ پھیرا ان سے اور کہا، اے افسوس اوپر یوسف علیہ السلام کے، اور مفید ہو گئی آنکھیں اس کی، یعنی یعقوب علیہ السلام کی غم سے پس دو غم سے بھرا ہوا تھا۔ بیٹوں نے جب دیکھا باپ کو کہ یوسف علیہ السلام کے غم سے روتے روتے آنکھیں جاتی رہیں، ذوق و نتوانی سے پشت خم ہوئی، تب کہنے لگے جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ اور کہا انہوں نے، قسم ہے خدا کی ہمیشہ رہے گا تو یاد کرتا یوسف علیہ السلام کو، یہاں تک کہ ہو جاوے تو مذبحی یا ہو جاوے ہلاک ہونے والوں میں سے، یعنی بنیامین کے جانے سے۔ پھر یوسف علیہ السلام کا غم تازہ ہوا اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، جس کا ترجمہ قرآن پاک میں ہے، کہا اس کے نہیں کہ شکایت کرتا ہوں اپنی بے قراری کی اور اپنے غم کی اللہ کی طرف، اور جانتا ہوں میں خدا کی طرف سے جو کچھ تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم مجھ کو صبر سکھاؤ گے، لیکن بے صبر وہ ہے جو خلق کے آگے شکایت کرے۔ خلق کی میں اسی سے کہتا ہوں جس نے درد دیا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے مجھ پر آزمائش ہے، دیکھو کہ کس حد تک پہنچ کر ختم ہوئی۔ جس وقت بنیامین کی خبر سنی، ہماری اور آنکھیں الٹ دی۔ جبریل علیہ السلام نے آ کے فرمایا، اے یعقوب علیہ السلام، اگر تم خدا کو یاد کرو گے اور نہ رو گے تو تم کو راحت ملے گی، وگرنہ یہ عبث سے۔ جبریل علیہ السلام نے جب یہ ارشاد کیا، حضرت کو معلوم ہوا یوسف علیہ السلام مصر میں ملے گا، تب اپنے بیٹوں سے کہا، میں جو خدا سے جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ ترجمہ جس کا یہ ہے، اے بیٹے جاؤ اور تلاش کرو یوسف علیہ السلام کو اور اس کے بھائی کی، اور مت نا امید ہونا اللہ کے فضل سے، بے شک نا امید نہیں اللہ کے فضل سے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ خبر ہے کہ یعقوب علیہ السلام 5 برس تک یوسف علیہ السلام کے لیے روتے رہے، سوائے عبادت اور ذکر یوسف علیہ السلام کے اور کچھ نہیں کرتے تھے۔ بھوک پیاس کی حالت میں وہی ذکر اس کا ان کی غذا تھی، شب و روز یہی کام کرتے۔ ایک روز جبریل علیہ السلام نے آ کے ان سے کہا کہ خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے، سبحان اللہ، اور فرمایا ہے کہ اگر تم اس سے زیادہ یوسف علیہ السلام کے لیے گریزاری کرو گے تو بھی مرض الہی کے سوا تم سے کچھ نہ ہو سکے گا۔
नाम तुम्हारा पैगंबरों के दफ्तर से मिटाया जाएगा। ये सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम ने ध्यान हुक्म इलाही पर किया। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम इनको मिले। अगर कोई कहे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को नाहक चोर बनाकर क्यों पकड़ा था, जवाब ये है कि उन्होंने भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को नाहक चोर कहलवाया था। इसी की मकाफात दुनिया में यूं इस आयत की, अगर इसने चुराया तो चोरी की इसके एक भाई ने भी पहले, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान पर एक तोहमत दी इनके भाइयों ने। फिर अगर कोई कहे कि बिन्यामीन तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का सका भाई था एक बदन से, इस पर क्यों बदनामी चोरी लगाई, इससे तो उनकी कोई बुराई ना पहुंची थी। ये सच है, मगर बदनामी इसके भाइयों के सबब से भी ज़ाहिरन, लेकिन हकीकतन वो साफ थे। पीछे मालूम हुआ वो सब बेगुनाह थे। फिर तो किसी को कुछ ऐसा ना पहुंची। अलगर्ज फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को मिस्र में भेजा और बोले, अपने भाई बिन्यामीन को जाकर ले आओ, और खुदा की रहमत से मायूस मत हो कि इसकी दरगाह से महरूम ना रहा जो इसका मुनकर हो। सो काफिर तब बेटों ने हजरत से अर्ज की, एक खत हुजूर बनाम अजीज के लिख देने। वो अजीज मर्द मुअज्जिज है, शायद हुजूर के खत पाने से मान ले, उसे छोड़ दे। तब याकूब अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। इतने ही लिख के बेटों के हवाले किया। तब बाप से रुखसत होकर मिस्र में जा पहुंचे और नामा ले जाके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप का खत बड़ी ताजीम और तकरीब से पढ़ा और बजीज़े बुरका ज़ारो ज़ार रोने लगे। बाद इसके खत का जवाब लिख के ये खत बाप के पास भेजा जिसका मजमून कुरान पाक में है। जब नामा याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, लोगों से कहा, देखो असल यूसुफ का मालूम होता है। बोले, आपको किस तरह मालूम? हजरत ने फरमाया, जवाब इस खत का लिखना सिवाय पैगंबरों के और किसी को मुमकिन नहीं और नाफहम है। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने इसका जवाब लिख के कासिब के हवाले किया और एक खत बेटों के पास लिखा। इसका मजमून, ए बेटो, तुम अजीज के पास जाके अजज़ो इंकसारी से बिन्यामीन को तलब कीजिए और शायद वो मेहरबान होकर मेरे बेटे को छोड़ दे और गहियों से भी भर ले। मेरे कहत के यहाँ के लोग सब जान बलबल हैं। इस मजबून का खत पाके यहूदा अपने भाई को लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गिरफ्तारी करने लगे और बोले, ए अजीज, हम बेचारे गरीब परदेसी इस मुल्क में तुम्हारे पास आए हैं और बाप हमारे बूढ़े घर में हमारे लिए रखते हैं। हम जो माल हजूर में लाए हैं आप इसे ले लो और गिरफ्तार इसके हमको कुछ गहियों दे दो और हमारे भाई बिन्यामीन को अपना तसल्लुत करके छोड़ दें कि तमाम अहले मुल्क तुम्हारे दस्ते कब्जे में हो रही है। ऐसा एक आदमी के लिए कुछ कमी नहीं। और कहने लगे, जिसका जिक्र कुरान पाक में है, और कहने लगे, ए अजीज, जिसका एक बाप बूढ़ा बड़ी उम्र, सो रख ले एक हम में से इसकी जगह में, देखते हैं तो एहसान करने वाला। बोला यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह पनाह दे हम किसी को पकड़े, मगर मैं जिस पास पाई अपनी चीज तो बेइंसाफ हुए। फिर जब हुए ना उम्मीद हुए इससे अकेले बैठे मसलत को बोले, इनका बड़ा, तुम जानते नहीं कि तुम्हारा बाप ने लिया है तुमसे अहद अल्लाह का, और पहले जो कसूर कर चुके हो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाल में, सो मैं ना कर सकूंगा इसको मुल्क से जब तक कि हुक्म दे मुझको बाप मेरा या किसिया चुका है। अल्लाह मेरी तरफ और वही है सबसे बेहतर करने वाला। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को उम्दा लिबास से शहाना पहना रखा था और नौकर खिदमतगार बहुत इनकी खिदमत में मुतय्यन किए और एक मकान और निशान इनका रहने को दिया और हर रोज अपने साथ शेर तमाशा को ले जाया करते। हर वक्त हर लहजा बाप का जिक्र इनसे किया करते और बिन्यामीन दिल में कहते थे, इसकी खबर बाप को देनी चाहिए, जल्द यहाँ आने की आराम की जगह है। भाइयों ने जब बिन्यामीन को देखा लिबास शहाना पहने तख्त पर बराबर यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बैठा करते हैं, आपस में कहने लगे, ये शायद अजीज मिस्र नहीं बल्कि यूसुफ है। तो ऐसी शक्कत से अपने बराबर तख्त में बिठाना सिवाय अपने भाई को
कौन किसी को बिठाता है। खुदा न खास्ता अगर हम पर कुछ मुसीबत पड़े तो बिन्यामीन को शफीक करेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उनका चेहरा मुतगय्यर देखा, फरमाया, तुम याद करो इनके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तुमने क्या क्या जुल्म किया था। कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तुमने क्या किया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम से उसके भाई से जब तुमको समझ ना थी बोले, जिसका जिक्र कुरान पाक में यूं है। उन्होंने कहा, सच तू ही यूसुफ है। कहा, मैं ही यूसुफ अलैहिस्सलाम हूँ और ये मेरा भाई है। तहकीक अल्लाह ने एहसान किया ऊपर हमारे, अलबत्ता जो कोई परहेजगार हो और सब्र करे। बस तहकीक अल्लाह जाया नहीं करता। तो अब एहसान करने वालों का, यानी जिस पर तकलीफ पड़े और वो शरह से बाहर न हो, न घबरा दे और आखिरुल अमर बला पर सब्र करे, अलबत्ता ज्यादा अता मिलेगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम से जब इनके भाइयों ने ये बात सुनी, एक बार भी नाचार होकर रो पड़े और कहने लगे। उन्होंने कहा, कसम है खुदा की, तहकीक पसंद किया तुझको अल्लाह ने ऊपर हमारे, और तहकीक थी हम अलबत्ता खताओं, यानी तुम्हारा ख्वाब सच था और हमारा हसद गलत। अल्लाह ने तुम पर फजल किया। अब हम गुनाहगार हैं, तौबा की हमने गुनाहों से। अब तुम जो अकूबत करो हम पर सो सजावार है। अगर अफू करो तो लायक तुम्हारी बुजुर्गी के हैं, अगर सजा दो तो लायक हमारे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसका जिक्र कुरान पाक में है। कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुछ इल्जाम नहीं तुम पर, आज बख्शे अल्लाह तुमको और वो है सब मेहरबानों से मेहरबान। कुरान मजीद में आया है, जो कोई आदमी अपने गुनाह और तकसीर से तौबा करे और माफी चाहे सो माफी पावे अपने गुनाह से। इन इशारात पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को बसबब तौबा और अज्ज को इंतसारी के माफ किया था। अगर ऐसा यहाँ न हो तो हश्र में इंसाफ के दिन खुदा के पास जो मोमिन गिरिया वजारी करेगा, अपने गुनाहों तकसीर से माफी चाहेगा, तौबा करेगा, तो अल्लाह ताला फरमाता है, तहकीक हम थे दुनिया खतावार और गौर में थे, बहुत तकलीफ में, बात सवाल मुमकिन नकीर के, आज हम पर बड़ा दगदगाए हश्र का पड़ा है। हमने कुछ इबादत तेरी नहीं की, उम्मीद कभी तेरी दरगाह से अफू। ऐ रब, हम तेरे फजलो करम के उम्मीदवार हैं, हमारी खताएं बख्शिश और अफू फरमा, आतिश दोज़ख से निजात दे, बहशत अंबर सरजश्त में हमको जगा दे। तब इस वक्त खुदा ताला फरमाएगा, ए बंदा अपने तईन देख तूने क्या क्या गुनाह किया। अब जगह अजाब और बंदा मोमिन कहेगा, ये रब गुनाह मेरा अगरचा हद से बाहर है, उससे फजलो करम तेरा बहुत ज्यादा है, सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, हमने तुम पर कुरान भेजा था और साथ उसके एक रसूल तुम्हारी हिदायत के लिए, फिर क्यों तुमने इस पर अमल ना किया। अब रंजो अजाब में रहो। तब वो बोलेगा, या रब, अपने गुनाहों से तेरी दरगाह में माफी चाहते हैं, तो अपने फजलो करम हमारी खता को अता से बदल कर बारी ताला बतौर कना के यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के तौर पर फरमाएगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके पास अपनी तकसीरें माफ करानी चाहिए थी, तब उन्होंने रहमत हुई और माफ किया। सुभान अल्लाह। ए बंदो, तुम अपने गुनाहों से आप मुकर्रर हो, अब हमको लाजिम है तुमको माफ करें। और किस्सा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस वक्त अपने भाइयों से कहा, तुमको मैंने तुम्हारी खताए माजी से माफ किया, कुछ गम मत करो, मैं दुआ करता हूँ खुदा तुम पर रहम करे। मैंने तुम्हारी तकसीरें माफ की और अल्लाह भी तुम्हारा गुनाह माफ करे। अब हमको बाप से मुलाकात कराओ, तब तुम्हारा छुटकारा है। भला कहो तो आंखें बाप की किस तरह जाती रही। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कैसे मुलाकात हुई, ये आपको कल की वीडियो में लाजमी बताया जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सब के गुनाह माफ फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।